So good morning once again, everyone, in winter camp day 4. So I'm going to ask the question. The first question is what is absolute cell reference and what is the importance of this? Who will say? Give a response. Cell reference study I had discussed, no? Three types of cell references I had discussed study. The first one, relative cell reference, absolute cell reference, and the third one is mixed cell reference. So anyone can reply, what is this? What is absolute cell reference? Sania Mahvis, can you? Sir, may I? Okay, Sapna wants to say something. After Sapna you will say, okay, Dimple? Yes, Sania. No, Sapna. Sir, a cell reference in a spreadsheet application that remains constant even if its shape and size change. शेप एंड साइज चेंज नहीं कर सकते हैं आप उसको. ठीक है, हम आप उसको क्लियर करते हैं. यस, So by this, डिम्पल. sir, an डिम्पल. absolute cell reference is a cell reference which remains constant if it's copied or moved to another sheet or cell. Yes, because the cell reference, uh, you are absolutely right. Yes, Tanisha want to say something. Tanisha? The cell reference is the in which the rows and columns are made constant by adding dollar sign. Yeah. Yes, it's a very simple because in Microsoft Excel, whenever we are using a formula and function, so obviously there we will use what the cell reference or cell addresses. So whenever we are just using the field handle feature, so formula, if you apply formula in particular cell and if you want to drag it, so according to the formula, according to the values, the range of the cell will be automatically changed. Whatever formula you have typed, that will be not remain constant for each and everywhere. This is the first case. In second case, what? Whenever you are copying the formula, so copying concept means what? Whatever things we are copying and when we are pasting, the same thing will be there. But in the case of formula, that will be changed because by default the cell reference we are using, that is relative cell reference, and by nature it will be changed. So if you want to make constant, that is cell address, if you want to make constant each and everywhere, whenever you want to copy and whatever you are copy and pasting, if you want the same thing, then you have to make that relative cell reference as an absolute cell reference. And how you will do? So Tanisha already has given the answer by just adding the dollar sign in just prefix of column name as well as row name. So I hope this is clear to everyone. This is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये आपको कल भी हम लोग डिस्कस किए थे. यस, कल हम कुछ फंक्शन डिस्कस किए थे. सारे फंक्शंस क्लियर हैं आप सभी को? कोई फंक्शंस पे डाउट नहीं है? I'm going to share my screen and then 1-2 more questions I will ask to you so that कि एक बार थोड़ा रिवीजन रिकॉल हो जाए. कल का सीट शायद मेरे पास है. ये जो हमारा सीट है वह कल का सीट है. यस, बहुत सारे फंक्शंस डिस्कस किए थे हम लोग. इसमें से किसी फंक्शंस में दिक्कत है? रैंक, आई थिंक दिस इज ओके. कल का कोई परसों का टॉपिक था, रैंक क्लियर है सभी को. देन दिस वन इफ जो हम लोग यूज किए थे, इसके बारे में क्लियर है आप सभी को? इफ Yes, को sir. कैसे Yes, sir. यूज किए? वेरी गुड. देन यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे, राउंड फंक्शन यूज किए थे, एवरेज यूज किए थे. एवरेज भी क्लियर है सभी को. इसमें हम बताए थे कि जो जीरो और जो एम्प्टी वैल्यू होता है, बोथ आर डिफरेंट थिंग. मेनी स्टूडेंट्स ऑलवेज मींस गेट कंफ्यूज कि सर जीरो और एम्प्टी वैल्यू बोथ आर सेम, बट जीरो इज अ वैल्यू. एंड ये हम आपको करके भी दिखाए थे यहाँ पर, जो टेक्निकल चीज था.
मैक्स, मीन, काउंट, ये सारी चीजें ओके है आप सभी को। चलिए अब हम कुछ फंक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, यू कैन आस्क टू मी। माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो नाउ आज का जो है हम लोग जो क्लास जो है फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। जस्ट वन सेकेंड। यस, अभी हम लोग ना जैसे कल भी, आज हम लोग फॉर्मूला फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला also clear to you people. So अभी हम लोग देखिए यहाँ फार्मूला में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग फार्मूला है, इसमें से हम लोग लॉजिकल फार्मूला के बारे में हल्का सा कल डिस्कस किए थे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ लॉजिकल के फार्मूला के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट लॉजिकल का जब भी बात करें तो इसका जो रिजल्ट आता है आपका वह 0 1 में आता है। किस में आता है? 0 1 में आता है। जैसे सपोज हम यहाँ पर 10 डाल दिए, ध्यान रखेंगे आप, और यहाँ पर हम कर रहे हैं इक्वल टू यू कैन सी एंड नाम का एक हमारे पास फंक्शंस होता है एंड, या अभी हम लोग ऐसा करते हैं इक्वल टू दिस ग्रेटर देन, ध्यान से देखेंगे तो रिजल्ट आपको आएगा फॉल्स आएगा। दिखा आपको फॉल्स आया? सी हियर, यहाँ देखेंगे आप लोग, ये दिस इज द लॉजिकल ऑपरेशंस। I15 greater than 20, what is the value of I15? You can see here value of I15 is what? 10. I15 is what? 10. And what logic I have applied there? I15 greater than 20. If I will ask to you, just tell me one thing, that value 10 is greater than 20, what response will come from? आप क्या बताएंगे? 10 is greater than 20, आप क्या बोलोगे? आपकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या आएगा? नो, because 10 is not greater than 20. You will say like this, no? Response. Am I audible to you? Yes, sir. Yes. Yes. तो यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर कंप्यूटर से पूछ रहे हैं कि 10 20 से बड़ा है, तो बोल रहा है फॉल्स, नो इट इज नॉट। यदि हम इसी सा यहाँ पर डालें, यस, इक्वल टू साइन दिए, और यहाँ पर पूछ रहे हैं 120 इज ग्रेटर देन 100, पूछ रहे हैं, रिजल्ट क्या देगा? यस ट्रू, यस ट्रू इज गिवन, क्योंकि 120 Yes. जो है यहाँ पर देखिए जो लगा है वो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, देखिए 120 इज ग्रेटर देन 100। अभी हम लोग लॉजिकल का बात करते हैं, लॉजिक का बात आपको दो ही में आता है, आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और आता रिजल्ट False. फॉल्स। False. वेरी गुड। अब यस, दूसरा यदि लॉजिक की बात करें हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करते हैं इक्वल टू 10, या फिर ऐसा करते हैं इक्वल टू 10, व्हाट डू थिंक व्हाट द रिजल्ट विल कम? दिस इज व्हाट लॉजिकल ऑपरेशंस। फिर से देखिए यहाँ पर क्या किए, सो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि I15 में वैल्यू जो है वह 10 के इक्वल है, तो बोला यस। तो यहाँ पर यदि हम लॉजिकल का बात करें तो लॉजिक में आप देखेंगे क्या क्या चीज यूज किए हम यहाँ पर। हम लोग बात किए इक्वल टू यूज किए, लेस देन यूज किए, ग्रेटर देन यूज किए, इसके बाद फिर हम लोग लेस देन इक्वल टू भी यूज करेंगे, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल भी यूज करेंगे। तो दिस हमारा ये लॉजिकल ऑपरेशंस है, जिसको हम लोग आगे जब आप उसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। सो दिस थिंग्स आर ओके, क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? Okay. अब हम थोड़ा आते हैं यहाँ पर लॉजिक में, देखिए और है एंड है, इस कुछ का हम बात करने जा रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाने जा रहे हैं इक्वल टू एंड डालें,
हाँ डाले, लॉजिक 1 डाले। लॉजिक 1 क्या डालना चाहते हैं हम कि लॉजिक 1 यहाँ पर आना चाहते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉमा दिए हम, दूसरा लॉजिक पूछ रहा है, दूसरा लॉजिक हम क्या डालना चाहते हैं, दूसरा लॉजिक जो है यहाँ भी चेक करना चाहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ध्यान से देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लगाते हैं यहाँ पर एक आने का मन कर रहा है, यहाँ भी चेक किए, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 33 पूछ रहा है यहाँ पर, ऐसा लगा दिए, ठीक है। अब बताइए कि इसका रिजल्ट क्या देगा, तो ट्रू दिया। क्यों ट्रू दिया, एंड क्या है, एंड ऑपरेटर का काम क्या है, एंड जो लॉजिक गेट हमारा उसका काम क्या है, एंड क्या बोलता है कि इफ ऑल द कंडीशंस विल बी ट्रू then result will be true. And what are the logic I have applied? The first condition I applied what? I10 greater than equal to 33. What the first logic I applied? I10 greater than equal to 33. See I10, where is I10? Value is greater than equal to 33. यहाँ पर सही कंडीशन है। सेकेंड लॉजिक क्या लगा, G10 greater than equal to 33. See the G10 दिख रहा है आपको, yes greater than equal to 33, यहाँ भी लॉजिक सही है। सेम थर्ड लॉजिक क्या लगा, F10 greater than equal to 33, yes F10 is also greater than equal to 33, means all the conditions are true, all जो है वो सही है ना। तो एंड क्या बोलता है कि एंड इफ ऑल आर ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर दें, यहाँ लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू 33, equal to 33. Can you tell me what will the result when you press enter? True or false? True or false? Confusion. Are you getting what I'm trying to say? Quick response I want. Children, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, no problem. If you are not knowing, don't worry. डर को डस्टबिन में डालना, always remember. Because pressurize the, I'm not taking class in a classroom. If you will not do these things, so I will give punishment. Them be cool. Because there is only one purpose. Just in winter season, we will utilize, we will learn something. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटर किए, फॉल्स आया। अब आया कि सर इसमें फॉल्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम इफ यू आर जस्ट लर्निंग तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। कैन आई रियल एग्जांपल एंड थ्रू दैट एग्जांपल समझ में आ जाए? शुड आई गिव एग्जांपल, रियल एग्जांपल? Yes, sir. ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल सपोज आप 8A का स्टूडेंट हो, ठीक है, डीएवी घाटो स्टूडेंट्स ऑफ 8A, और हमारे स्कूल में कंडीशन गेट पर जो कन्हैया जी हैं उनका कंडीशन क्या है कि द स्टूडेंट्स विल इंटर इन द स्कूल कैंपस। कौन कौन करेगा? दे मस्ट, या वो स्टूडेंट हो हमारे डीएवी घाटो का हो, उसके पास आई कार्ड हो। ये 3 कंडीशन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? उनका बच्चा हो, उसके पास आई कार्ड हो, बच्चा यूनिफॉर्म में हो स्कूल कैंपस में, और तीसरा कंडीशन वो 7:30 या 7:50 से पहले आया हो, तभी उस बच्चा को परमिट दिया गया। फर्स्ट कंडीशन वह डीएवी का बच्चा हो, डीएवी घाटो का बच्चा हो। दूसरा कंडीशन दे मस्ट बी इन स्कूल यूनिफॉर्म। थर्ड कंडीशन और जो आ रहा है वो 7:50 से पहले आए, तभी उसको स्कूल के अंदर किया जाएगा, ठीक है। और ये तीनों कंडीशन उसको फुलफिल करना है। यदि तीनों कंडीशन में यदि एक भी कंडीशन फॉल्स है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में है बट वो स्कूल का ही बच्चा है, डीएवी का ही बच्चा है, डीएवी घाटो का ही बच्चा है, वो स्कूल यूनिफॉर्म में, बट कन्हैया जी उसको एंट्री देंगे? जस्ट टेल मी यस या नो। कन्हैया जी गेट में एंट्री देंगे? No, sir. नो। व्हाई? बिकॉज 3 कंडीशन लगा गया, 3 में से एक गलत था और हम लगा दिए कि तीनों को एंड लॉजिक लगा दिए कि इफ ऑल द कंडीशंस विल बी ट्रू विल बी, यदि वो तीनों कंडीशन फुलफिल करता तो उसको रिजल्ट
true मिलता है, yes, you can enter in the school campus. So this is the concept of and operator. This is the concept of and logic gate. अब इस केस में देखिए, यहाँ पर इस केस में देखिए हमारा, देखिए I10, where is I10 equal to 33? Condition is false because I not greater than equal to 33. It is what 56. It is what 56.78 and यहाँ बोल रहा है कि 33 से नीचे होना, तो see this one, G10 equal to 33. See G10, yes, 44 is the condition is true. Next, see this one, F10 greater than equal to 33. Yes, this condition is true, but false. So that's why a result will be false. So this and is okay, or should I give and is clear? Yes, sir. All are here or have gone to Sir. take breakfast. This and is clear. Rani, Sapna, Sumit, Yes, sir. It's clear. हाँ जितने बच्चे हैं, Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. आते हैं और के बारे में. नेक्स्ट जो हमारा है फंक्शन वो है और. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ओ आर और. अब देखिए यहाँ और का कहानी क्या है. तो और बताने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल क्या है, यहाँ चल रहा आपका फेट एग्जीबिशन चल रहा है. क्या फेट एंड एग्जीबिशन चल रहा है. कंडीशन क्या है कि तो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में हो या उसके पास उसके पास फी कार्ड हो. तीनों में किसी के पास, तीनों के मतलब किसी पास तीनों में से कोई एक भी चीज है, उसको एग्जीबिशन ऑफ. ध्यान से सुनना, इसके पहले में क्या था कि सारा कंडीशन फुलफिल करेगा देन ओनली यू कैन इंटर इन द स्कूल कैंप. अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ फेट चल रहा है, एग्जीबिशन चल रहा है, कंडीशन लगा दिया गया या तो वह बच्चे के साथ है जिसके पास आई कार्ड हो या बच्चे का आई कार्ड लेके आए. दूसरा चीज, या तो उसके पास फी कार्ड हो, ठीक है, या नहीं तो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में हो, तो उसको एंट्री मिल जाएगा. तो यहाँ देखिए वही कंडीशन है, और लगा दिए थे तो वह फॉल्स दे रहा था, एंड लगाए तो फॉल्स दे रहा था, और लगाएंगे तो दिस कंडीशन इज फॉल्स. बट तो और क्या बोलता है, आर देयर, व्हाटएवर लॉजिक्स आर देयर, कोई एक भी सही होना चाहिए, देन रिजल्ट, आप रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू. इज इट ओके? एंड और थिंग्स आर ओके. So sometimes your voice is cracking. क्या आज भी थोड़ा नेटवर्क Yes, sir. Your voice like is. Yes. का am I हो रहा है तो अच्छा नेटवर्क क्या. ओके, जस्ट आई एम जस्ट नेटवर्क बिकॉज़ थोड़ा देख रहे हैं ना, नेटवर्क जस्ट स्विचिंग another network. Now just confirm me now. I'm okay, children. Yes, sir. Now I'm okay. Okay, Yes, sir. okay. So just I'm asking the two things I have discussed, the new two things I have discussed, and or. So both are clear or any confusion? The first one I have discussed and a and the and. Second one I have discussed or. The two things are okay. Both are okay. Yes, sir. Or Yes, more sir. example you want. Or more example you want. Okay. अब
दिखाते हैं इसका काम क्या है नहीं है, तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए। जैसे यहाँ पर अब हम करना चाहते हैं कि सर इसको ऐसा कर सकते हैं कि एंड लगा दिए, एंड लगा दिए 10 इक्वल टू 10, पहला लॉजिक। दूसरा लगा दिए 10 लेस देन 20, यहाँ से लिखेंगे 20, और लगा देते हैं 50 लेस देन 60। एंड टेल मी, अभी जो करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल द रिजल्ट? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? So false. False. Why true? And why you have said false? Any reason behind it? See the condition. No, The sir, it first will one be is what? true. Very good. True. अब इसमें थोड़ा चेंज कर दें, यहाँ पर 11 कर दें, and what will result? False. Okay, very good. अब यहाँ पर हम and, okay, hello, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नेटवर्क इश्यूज है। ओके, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Yes, sir. Now is visible है? Yes, sir. ओके, देखिए अभी यहाँ पर रीजन था, अभी और लगा दिए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पर जब हम और लगा दिए तो इसका रिजल्ट क्या होगा बताइए तो? ट्रू और फॉल्स? So false. ट्रू और फॉल्स? False. It's coming true. Why? Why it's coming true? Because Why it's coming 60 is greater than 50. Okay, Sir, because but I have 10, used, 10 and 11 are not 20 equal. yes, just wait, I'm going to clear. Look, I have used here or, and और क्या बोलता है? कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर इसको ग्रेटर देन भी कर देना, यहाँ पर ग्रेटर देन भी कर दें, इस केस में भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा? ट्रू आएगा। Why ट्रू? बिकॉज और का नेचर क्या बोल रहा है कि कोई भी कंडीशन ट्रू होगा। अब यहाँ कंडीशन, दिस कंडीशन इज फॉल्स, this one is also false, but one condition is true, and I have used here or, so that's why the result is true. Is it okay? Or Yes, sir. and Yes, sir. चलिए, अब इसके बाद एक और आता है, वो आता है नॉट। नॉट है, हाँ नॉट। देखिए तीन चीज है। अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं, नॉट का थोड़ा सिंटेक्स अलग हो जाता है। एक हम लोग इसको चाहिए, 1 मिनट जो है हम इसको हटाते हैं यहाँ से। अब हम लगाने जाते हैं यहाँ नॉट इक्वल टू नॉट। नॉट के बाद बोलता है चेंज ट्रू और फॉल्स, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर डाल दिए 10 इक्वल टू 11। ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। व्हाट विल द रिजल्ट? क्या देगा? व्हेन यू प्रेस इंटर, व्हाट विल द रिजल्ट? यू वांट टू एक्सेस करेक्शन पॉसिबल बोलता है, कुछ प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? यस, अब यहाँ पर देखिए, एक क्या, एक क्यों दिया एक ट्रू? कैन यू टेल मी व्हाई दिस रिजल्ट हैज कम ट्रू? Sir, because 10 is not equals to 11. वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर ये 10 इक्वल टू 11 ये फॉल्स दे रहा है हमारा। ये क्या दे रहा है हमारा? फॉल्स। बट ये क्या चेंज कर दे रहा है इसको? नॉट फॉल्स को क्या कर दे रहा है? ट्रू कर दे रहा है। फॉल्स को क्या कर दे रहा है? ट्रू कर दे रहा है। अब यदि हम यहाँ पर देखो, ऐसा और कर सकते हैं, एंड लगा दिए इसके अंदर। इसके अंदर क्या लगा दिए? एंड लगा दिए। एंड बताइए अब क्या रिजल्ट आएगा इसका? व्हाट विल रिजल्ट? True. Why true? बिकॉज एंड क्या बोल रहा है आपको
कि कंडीशन ये फॉल्स है, ये यहाँ से दिया फॉल्स, और नॉट बोल रहा है क्या, दो थप्पड़ मारा, बोला कि नहीं भैया तुम फॉल्स नहीं, हम तुमको ट्रू बना देंगे, तो क्या हो गया, ट्रू। सो दिस थ्री ऑप्शंस आर क्लियर, एंड और नॉट, एंड Yes, और sir. नॉट क्लियर हो गया। Yes, sir. चलो अब इसी के बाद हम लोग इफ के बारे में बात कर चुके थे, इफ इसी के अंदर आता है, आपका इफ इसी के अंदर आता है, देखेंगे तो इफ इसी के अंदर आता है। नॉट आई हैव यूज, ट्रू भी हम लोग कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू रिजल्ट ट्रू करता है, कुछ फंक्शन भी डाल सकते हैं, दैट हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग थोड़ा आते हैं यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं। टेक्स्ट फंक्शन ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मुकेश लिखा हुआ है, हम यहाँ पर इस मुकेश को क्या करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं। फॉर दैट देयर इज अ फंक्शन लोअर, क्या फंक्शन है, लोअर। इस मुकेश को पूरा का पूरा लोअर में करना है, जस्ट प्रेस इंटर, ये मुकेश लोअर हो गया। सेम वे रोहन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आई वांट की उसको हम क्या कर दें, कैपिटल कर दें, तो व्हाट द फंक्शन वी हैव टू यूज, अपर, अपर करेंगे, और यहाँ पर रोहन को डाल देंगे अपर, तो रोहन हमारा कैपिटल हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट। इसको थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं कि एक हम आपको ना अच्छे ढंग से पहले नाम लिख लेते हैं, और बहुत अच्छा काम इसमें करते हैं। जो डिस्कस करने जा रहे हो हमारा टेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, टेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा उसका डिस्कशन है। तो अभी यहाँ पर डाल दिए हम, सपोज अमलेश कुमार डाल दिए, गणेश सिंह डाल दिए, इसके बाद मीना तिवारी डाल दिए। किन्हीं का भी कोई नाम होगा तो पर्सनली नहीं लेंगे जी, हमको जब मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। हिमेश डाल देते हैं, हिमेश सिन्हा कर देते हैं। इसके बाद राहुल महतो कर देते हैं, ठीक है। और क्या कर दें, नाम बताओ जी कुछ कुछ, विशाल, विशाल सिंह कर देते हैं। और ना इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक हेडिंग बना देते हैं, इंटायर रो इंसर्ट कर देते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नेम हम लोग डाल देते हैं, नेम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, अपर यूज करने जा रहे हैं, क्या यूज करने जा रहे हैं, अपर। यहाँ क्या यूज करने जा रहे हैं, लोअर, लोअर। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट, कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे लेफ्ट, फिर बात करेंगे राइट, राइट। इसके बाद फिर कुछ फंक्शंस डिस्कस, राइट के बाद क्या है जी, लेफ्ट राइट, मीड यूज करेंगे, मीड, फिर यूज करेंगे फाइंड, फाइंड, फिर यूज करेंगे सर्च, सर्च। और क्या यूज करें जी, और क्या फंक्शन देखो तो कुछ और है क्या, एक्सट्रैक्ट करना, डॉलर करना, ये सब हम लोग करेंगे। कॉन्कनेट करना, चलिए कॉन्केट करेंगे हम लोग, क्लीन करेंगे, ये सब हम एक एक करके आते हैं। लोअर हो गया, मिड हो गया, प्रॉपर हो गया, प्रॉपर भी करते हैं हम लोग, प्रॉपर। इसके बाद क्या है, प्रॉपर, फाइंड, फिक्स्ड है, लेफ्ट कर दिए, लैंड, लैंड कर देते हैं हम लोग, लैंड, LEN, लैंड। ध्यान से देखेंगे ये सब क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कोई बताएंगे क्या। हाँ, सब्स्टिट्यूट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सर्च हो गया, राइट हो गया, और टेक्स्ट हो गया। ट्रीम है, चलिए ट्रीम भी जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ट्रीम हो गया। चलिए और भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा बात करते हैं। तो अपर इज क्लियर, अपर सबको पता समझ में आ गया अपर क्या होता है। थोड़ा ना हम लोग जो कल लर्न Yes, किए sir. हैं, थोड़ा उसको उसको थोड़ा स्टाइलिश कर देते हैं। हम लोग कल पढ़े हैं ना, बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हैं। थोड़ा फॉर्मेट करने के लिए सेल स्टाइल में थोड़ा सा जाकर हम लोग करते हैं, सेल स्टाइल हम थोड़ा करना चाहते हैं एकदम अट्रैक्टिव, ऐसा करते हैं ना। देखो सेल स्टाइल में फर्स्ट हेडिंग में हम लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, एंटिंग पेंटिंग करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। सेल स्टाइल में जाइए, और कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, विच वन, आई थिंक दिस वन इज ओके, दिस वन इज ओके, दिस वन इज ओके, दिस वन इज ओके, Sir, दिस वन इज output. नॉर्मल। आउटपुट कहाँ दिख रहा है, आउटपुट, चलो वेरी गुड, आउटपुट दे दिए। और यहाँ पर हम लोग इसको बॉक्स में डाल देते हैं, और जो भी करना होगा धीरे धीरे आप सबको पता है, ये सब आप लोग छेड़छाड़ करते रहना आप लोग। Yes, चलिए sir. यहाँ पर आ गए। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, अपर कैसे यूज करना है, अपर
इक्वल टू UPPER अपर, और क्या करना है यहाँ पर आपको कर लेना है। अब बताइए, तो यहाँ अपर के साथ जो हम एड्रेस पास किए हैं वो व्हाट इज दैट, विच सेल डिफरेंस इज देयर, रिलेटिव सेल डिफरेंस, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। A2 पास किए हैं, अपर के अंदर A2 पास किए हैं। Yes, sir. विच Relative टाइप cell ऑफ, reference. वेरी गुड। और रिलेटिव सेल डिफरेंस किए हैं तो जब हम इंटर प्रेस करेंगे, थोड़ा कॉलम बड़ा कर देते हैं जी ताकि बढ़िया से और समझ में आ जाए। चलिए, अब यहाँ पर जब हम इसको यहाँ पर करेंगे, खींचेंगे तो क्या होगा, सभी का चेंज हो गया। और देखिए यहाँ एड्रेस A3 हुआ, जबकि हम डाले क्या थे यहाँ पर फॉर्मूला में A2 डाले थे। बट इफ आई वांट टू फिक्स दिस वन, तो विच सेल डिफरेंस वी हैव टू यूज, Absolute. एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। एंड व्हाट यू हैव टू डू, देखो इसका भी शॉर्टकट है, इसका भी शॉर्टकट है। आप ना आई थिंक F4 प्रेस करना पड़ता है। F4 प्रेस करो तो, जस्ट 1 सेकेंड, इसके अंदर ना क्या करते हैं हम लोग, जो डिफरेंस डालते हैं यहाँ क्लिक करो और F4 प्रेस करोगे ना, फंक्शन F4 करोगे तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, रिलेटिव से एब्सोल्यूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रिलेटिव से एब्सोल्यूट बन जाता है। इफ यू वांट टू राइट समवेयर तो यू कैन, कि हाउ यू कैन चेंज रिलेटिव सेल रेफरेंस टू एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसको कितने बार टाइप करोगे आप, $A फिर $2, बेटर विच शॉर्टकट की यू हैव टू यूज, F4. F4. विच शॉर्टकट, F4 यू हैव टू यूज। क्या करना है, F4 यूज करना है। अब देखिए फिक्स हो गया, एंड व्हेन वी ड्रैग दिस वन तो हर जगह अमलेश कुमार ही दिखेगा आपको। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का काम आपको समझ में आ गया। चलिए अभी हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और उसके बाद हम इंटरप्रेस करते हैं। अब यहाँ से हम इसको करेंगे तो चलिए यहाँ पर हो गया। लोअर में करना हो, ये एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम जो फेस होता है, आप लोग भी फेस करोगे जितना काम करोगे उतना। लेकिन एक्चुअली जो मेरे पास क्वेरी आते हैं, कुछ टीचर्स लोग का क्वेरी आते हैं और नॉट टाइप कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लोअर केस में, अपर केस में। अब बोलते हैं कि नहीं सर ये जो है ना वो अपर केस में कर दीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है, ऑप्शंस होता है, सीधा सेलेक्ट करो और अपर केस में चेंज कर दो, होता है ना। बट यहाँ नहीं होता है, तो कैसे करेंगे आप क्या कहोगे कि सर यहाँ से कॉपी करेंगे और सीधा पेस्ट कर देंगे यहाँ पर तो आ जाएगा, पेस्ट कर देंगे आ जाएगा, नहीं आएगा। तो कल या परसों डिम्पल बताई थी, क्या करने के लिए बताई थी डिम्पल, याद है आपको, The paste कॉपी करेंगे, values. यस, राइट क्लिक करो यहाँ से, राइट क्लिक करो यहाँ से, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू में आएंगे, यहाँ वैल्यूज में आ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे वैल्यूज में तो ये वैल्यूज आ गया यहाँ पर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर पेस्ट में जाइए और यहाँ पर पेस्ट वैल्यू में चले जाइए। तो ये ऑप्शंस हैं जो कि यूज होता है, ठीक है। अब हम उसको अंडू करके एज यूजुअल कर दें। लोअर करना है तो लोअर भी हम इसी तरह से करेंगे। क्या करना पड़ेगा हमको, लोअर के लिए लोअर यूज करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा सारा जो है वो लोअर केस में, और बाकी कान पकड़ के खींचना सबसे आसान काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यस, लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ लेफ्ट फंक्शन। अभी जितने भी फंक्शंस बात कर रहे हैं हमारा टेक्स्ट फंक्शन है, जो भी फंक्शंस बात कर रहे हो फंक्शंस क्या है, हमारा टेक्स्ट फंक्शन है। लेफ्ट फंक्शन क्या काम करता है, लेफ्ट का मतलब समझ में आता है, लेफ्ट साइड, अरे बोलो यस नो। Sir, base Yes, will sir. be Yes, sir. shifted to left side. ओके वेट, सही है, आप लोग थोड़ा सा इसमें हल्का सा ध्यान रखना है। आई वॉन्ट, लेफ्ट साइड से हम 2 लेटर चाहते हैं, लेफ्ट साइड से 2 लेटर चाहते हैं, AM। अब इसको कान पकड़ के खींच दीजिए। अब आप लोग बताइए कि व्हाट इज यूज ऑफ लेफ्ट फंक्शन, just extract the value from left side up to as for requirement. Got it or not? Yes, sir. आप चाहते हैं कि नहीं 2 नहीं चाहते हैं, हम 4 चाहते हैं, लेफ्ट से हम 4 लेटर चाहते हैं, आप इंटरप्रेस कर दो।
आगे आपका, ठीक है, दिस इज ओके, सेम, इट इज सेम एज लेफ्ट, बट अब आपको चाहते हैं कि राइट से हम एक्सट्रैक्ट करें, तो व्हाट फंक्शन यू हैव टू यूज, राइट एंड देन क्लिक हियर, कितना चाहते हैं राइट से, आई वांट 2. 4, ओके 2, तथास्तु 2 कर दिए, प्रेस इंटर, देखिए राइट से 2 लिया क्या, कान पकड़ के खींच दो, इज इट ओके, राइट इज ओके, लेफ्ट इज ओके। Yes, sir. अब आता है यहाँ पर एक थोड़ा सा चीज आता है कि सर ये करने से क्या फायदा है, ये सब तो करके जो है कोई फायदा नहीं, लेकिन है फायदा। अभी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा पासवर्ड होता है, जैसे अभी हम एक फॉर एग्जांपल बात करें कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है, उसमें जब उस पीडीएफ फाइल को ओपन करना होता है, या बहुत सारा जैसे आपका आधार कार्ड या कुछ भी है उसमें पासवर्ड मांगता है, उसमें क्या बोलता है कि आपका नाम का फर्स्ट 4 लेटर प्लस उसके साथ डेट ऑफ बर्थ, ये आपका पासवर्ड होगा। Year उस of तरह से birth. पासवर्ड बनाना चाहते हैं, जैसे भी हमारा पासवर्ड हो तो हम डेट ऑफ बर्थ डाल दें यहाँ पर, और अपना पासवर्ड हमको भूल जाते हैं, हम सीधा कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो आई विल टेक द 4 लेटर्स फ्रॉम माई नेम फ्रॉम लेफ्ट एंड देन डेट ऑफ बर्थ का हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से जो पासवर्ड वगैरह बनता है ऑटोमेटिक जनरेट होता है, यहाँ पर ये सारे चीज यूज होते हैं। चलिए लेफ्ट राइट में कहीं से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आगे हम लोग मीट का बात करें। कैन यू गेस कि मीट में क्या होने जा रहा है? Sir, from middle part we will take the letters. कैन यू टेल मी द एग्जांपल, जैसे मान लो चलो अमलेश कुमार है, उसमें मिडिल में क्या करना है? So equal to mid bracket A2 हाँ A22 bracket close. स्टार्ट नंबर, आई वांट कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं? देखिए यहाँ मीट का बात करते हैं तो लास्ट एक को फर्स्ट एक को छोड़ दो और लास्ट आर को छोड़ दो, बाकी जो पार्ट है वहां मीट हो गया। अब मीट से आपको कहाँ उठाना चाहते हैं, तो आप काउंट कर लो कि ए एम, मतलब एम हमारा सेकंड पोजीशन है, तो स्टार्ट करना चाहते हैं सेकंड पोजीशन से, और जाना कहाँ तक चाहते हैं? 4 लेटर जाना चाहते हैं यार, अब देखो अच्छा लगेगा आपको, देखिए तो सही है क्या? सेकंड पोजीशन से लेकर फोर्थ तक गया है क्या? काउंट करके देखो। Yes, सेकंड sir. हमारा 1 2 3 4 आ रहा है आपका। अब आता है फाइंड, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? अपर लोअर लेफ्ट राइट मिड, अब आते हैं फाइंड। फाइंड का काम क्या है? फाइंड का मतलब क्या होता है? फाइंड करना। चलिए बात करते हैं, FIND फाइंड, फाइंड किए हम यहाँ पर, क्या कहां से फाइंड करना चाहते हैं? चलो हम फाइंड करना चाहते हैं अमलेश कुमार से। पहले यहाँ पे ऐसा करते हैं, क्या लेटर फाइंड करना चाहते हैं? हम फाइंड करना चाहते हैं एम, क्या करना चाहते हैं? एम। कहां से फाइंड करना चाहते हैं? इससे फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। और स्टार्ट कहां से करना चाहते हैं? स्टार्ट हम छोड़ देते हैं, अभी पहले देख लीजिए यहाँ पर छोड़ दिए। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट इज द रिजल्ट? Sir, 2. यानी कि हमारा फॉर्मूला में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो उसको हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए हमको फाइंड क्या करना है? एम को फाइंड करना है, तो आई थिंक हमको लगता है एम को यहाँ पर हमें देना चाहिए था ये फाइंड विद इन टेक्स्ट, और स्टार्ट हम लोग नहीं कर दिए। अब देखते हैं क्या देता है यहाँ पर फाइंड, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्स्ट सर्च करना है तो वो हमारा डबल कोड में होगा, तो आंसर इज 2। वाई 2? बिकॉज हमारा फर्स्ट जो ऑकरेंस है एम का, वह किस पोजीशन पर है? किस पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है। अब यहाँ आप सोच सकते हैं Yes, यहाँ sir. पर तो यहाँ तो एम भी तो है, यहाँ एम भी तो है, तो वाई दिस इज नॉट Sir, शोइंग? so because it is in third place. बट आई वांट टू सी दिस वन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस? तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंपल सा फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर हम फाइंड किए, एम को सर्च करना है स्ट्रिंग में, तो इसके बाद हम कुछ बोले नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट ऑकरेंस है उसको रिटर्न किया। बट आई वांट कि इसको छोड़कर देखना है, तो हम चाहते हैं सेकेंड वाला एम को छोड़कर देखना है, तो व्हाट यू हैव टू डू?
जो सेकेंड में जो पोजीशन पे है, सेकेंड के बाद देखना चाहते हैं ना किसी रिजल्ट। सेकेंड यहाँ बच्चे दे दिया, सेकेंड नहीं हम थर्ड से चाहते हैं, यहाँ पर इस सेकेंड में ले लिया, हम थर्ड से चाहते हैं। तो नाउ सी दिस एक्यूरेंस। देखो तो कुमार में एम का पोजीशन 10 है क्या? पूरा अमलेश कुमार में देखिए एम जो है वो 10th पोजीशन पर है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। व्हाट इज द वैल्यू? 10 आ रहा है? 10 आ रहा है? Yes, 10 sir. क्यों आ रहा है? Sir, it's in ninth position. How 9th position? Count it. AMLESH. 1 2 3 4 5 6 and blank is also a one character. Blank को भी एक character Yes, treat करता है. Now it is 10 ना? Now it is 10. yes, sir. अब इसको ड्रैग करेंगे ना, तो ड्रैग करेंगे तो क्या आएगा? Why this has come? Tell me. Because M इसको मिला नहीं। गणेश में M मिला क्या? नहीं मिला। मीना में M मिला क्या? नहीं मिला। आप पूछोगे सर मीना में तो M दिख रहा था ना, मीना में M होते हुए भी M क्यों नहीं शो किया? डिंपल Sir, सीखा? from third M. Yes, very good. Because condition what I have placed कि थर्ड लेटर से सर्च करना शुरू करो। हिमेश में मिला तो मिल गया इसको थर्ड में, राहुल में मिला नहीं मिला, विशाल में मिला नहीं मिला। तो दिस फाइंड इज ओके। रिस्पॉन्स आई वांट। फाइंड इज ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now just moving to the next part, that is search. Search is same as find. Find जैसा है, but there is a minor difference between find and search. So first see search का काम क्या है, चलिए करते हैं। SEARCH search। क्या सर्च करना चाहते हैं बोलो? चलो भाई एम ही सर्च करते हैं। एम सर्च किए, कहाँ पर सर्च करना है? तो चलो हम अमलेश कुमार में ही सर्च करते हैं और इसको बंद कर दिए। देखिए तो अब यहाँ पर इसको कान पकड़ खींच दिए। यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा चेंज कर दे और यहाँ पर भी हम कर दे, ताकि दोनों का रिजल्ट हम दिखा सके कि दोनों फाइंड एंड रिप्लेस का काम सेम है। कुछ गलत हो गया, जिसमें 7 दिख रहा था इसमें दिखा नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फाइंड M2 ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कान पकड़ खींच देते हैं। यहाँ इस जगह क्यों नहीं लिया? ये कुछ चेंजेस है क्या यहाँ पर? A6 राहुल महतो, जबकि यहाँ पर दिखा रहा है महतो में दिखा रहा है 7। Sir, maybe देखते M is in capital letter. यस। अच्छा, यहाँ तो ट्विस्ट आ गया जी। अच्छा, हमको वही चीज तो बताना था हमको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट 1 सेकेंड। अभी इसको ठीक कर देते हैं। यस, यू आर राइट। और यही डिफरेंसेस है यहाँ पर। नाउ सी द रिजल्ट। नाउ ऑल द थिंग्स आर ओके। अच्छा, यहाँ भी देखो, यहाँ पर मीना, यस, इसको भी ना, मीना को भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते। यही तो डिफरेंस है इसमें, यही डिफरेंस है। सेम आ रहा है सब कुछ। Now just tell me what Yes, is the sir. difference between both? What is the difference between both? Sir, in that the search take both capital and small letter, but find takes only small letters. Yes, find में यदि हम किए तो find में देखो, सर्च में क्या है कि वह स्मॉल और कैपिटल को एक ही मान के चल रहा है। स्मॉल और कैपिटल को एक ही मान के चल रहा है सर्च में, लेकिन फाइंड में जो आप पास कर रहे हैं एग्जैक्ट वही मैच कर रहा है। यदि वो मिल रहा है तभी वो काउंट कर रहा है। तो डिफरेंसेस इज क्लियर। फाइंड एंड सर्च में क्या डिफरेंस है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोपर फंक्शन। प्रोपर का काम क्या है? प्रोपर सेंटेंस केस पता है आप सभी को? व्हाट इज सेंटेंस केस? Means in each and every word the first letter will be capital and rest will be in lower case.
ये तो सेंटेंस केस होता है. What is sentence case? The first letter of each and every word will be capital letter and rest will be in lower case. So now see this proper P R O P E R proper. अब देखिए यहाँ समझ में आएगा ना. अभी अमलेश कुमार को ही ले लेते हैं. अब अमलेश कुमार में हमारा फर्स्ट लेटर अमलेश में ए कैपिटल होना चाहिए और कुमार में के कैपिटल होना चाहिए. तो ये ऑलरेडी यहाँ पर देखिए आ गया, आपका चेंज हो गया. Yes, sir. Proper is clear. So proper is just same as sentence case in Microsoft Word. Now next one is come to this length function. Length function का काम क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. length का काम क्या होता है? length का काम क्या होता है बताइए. Sir, to return the length of the text. वेरी गुड. कान पकड़ कर खींच दो, ये लेंथ हो गया. लेंथ क्लियर हो गया. लेंथ बताने की जरूरत है कुछ और? No, No, sir. sir. चलिए आता ट्रीम. ट्रीम का मतलब ट्रिमिंग करना, छांटना, काटना, ये तो ट्रीम होता है. चलिए यहाँ पर TRIM ट्रीम, और ट्रीम में हम यहाँ पर गए और यहाँ पर इंटरप्रेस कर दिए. थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि जो है वो क्लियर हो जाए थोड़ा सा, और ये सबको छोटा कर देते हैं ताकि ना हमको समझ में आना चाहिए. पर्पस इज ओनली कि हम जो बता रहे हैं वह क्लियर हो जाए आप सभी को. तो चलिए यहाँ पर ले आए. अब ये देखिए अमलेश कुमार में ट्रीम किए तो कुछ पता नहीं चल रहा है. कुछ पता चल रहा है क्या कि सर ये तो एज इट इज आ गया, आया ना? Yes. एज Yes, इट इज sir. आया. तो ट्रीम का काम क्या हुआ? कोई बात नहीं, अभी ट्रीम का काम दिखाते हैं यहाँ पर. चलिए ट्रीम का काम, अच्छा ये ले लिए थे KCL, हम B2 ले लिए थे. चलो उसको B2 हटाकर हम ना A2 कर देते हैं यहाँ पर. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज फॉर्मूला लगा हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे इसीलिए. चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो अमलेश कुमार है वहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस दे देते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ ट्रीम में देखिए कुछ चेंजेस दिखा क्या आपको? No, sir. ध्यान से देखो. सी द नेम कॉलम अमलेश कुमार और ट्रीम में देखो अमलेश कुमार. Sir, trim has less spaces. जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होता है उसको ट्रीम कर देता है. क्या करता है? ट्रीम कर देता है. थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं हम, थोड़ा और क्लियर करते हैं हम इसको. देखिए कुछ समझ में आया ट्रीम का काम? अमलेश कुमार फर्स्ट में देखिए Yes, क्या sir. लिखा हुआ था. लेफ्ट साइड से स्पेस था, बीच में स्पेस था, उसके बाद था, और ट्रिम क्या किया? उस स्पेस को खत्म कर देता है. उस स्पेस को क्या करता है? खत्म कर देता है. चाहे वह स्पेस लेफ्ट साइड से हो, चाहे सेंटर से हो, या राइट साइड से हो, स्पेस को क्या करता है? रिमूव कर देता है. क्लियर है? हाँ. Yes, sir. एक Yes, sir. एक एक MySQL का फंक्शन है वो एल ट्रीम. पता नहीं ये काम करता है कि नहीं, जस्ट चेक कर लेते हैं. एल ट्रीम नहीं है, एल ट्रीम यहाँ पर नहीं है. MySQL में आप लोग करेंगे, एल ट्रीम यहाँ नहीं है. चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो है वह सब्स्टिट्यूट फंक्शन है. सब्स्टिट्यूट फंक्शन है. तो चलिए यहाँ काम करते हैं. SU देखिए सब्स्टिट्यूट फंक्शन का काम क्या होता है. इक्वल टू SUB
SUBSTITUTE ये सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चाहते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमारे पास क्या चाहते हैं, जैसे हम टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर ए, उसके बाद कॉमा देते हैं, हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, उस ब्लैंक स्पेस को हम रिप्लेस करना चाहते हैं के से। किसे रिप्लेस करना चाहते हैं, के से। तो देखिएगा आप, समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो कुछ समझ में आया क्या, कुछ समझ में आया। सब्स्टिट्यूट काम क्या करता है, सब्स्टिट्यूट काम क्या Sir, करता है, इज इट ओके। replace from the name. यस, जहां भी ब्लैंक स्पेस था वहां पर उसके स्थान पर क्या पुट कर दिया, के पुट कर दिया। अब आपको के पुट करने का मन नहीं है, यू वांट टू पुट व्हाट, डैश यू वांट टू पुट। सी द रिजल्ट, जहां ब्लैंक था वहां पर आ गया अमलेश कुमार। सब्स्टिट्यूट इज ओके। Yes. कोई क्वेरी है यहाँ तक तो आप पूछिए हमसे। यहाँ तक यदि कोई क्वेरी है, किसी फंक्शन में क्वेरी है तो पूछिए। और भी देखिए टेक्स्ट में, और हम लोग आते हैं फॉर्मूला में। टेक्स्ट में क्या बताने लायक है, क्लीन करना तो क्लीन कर दो जी इसको। यहाँ पर ना क्लीन आप खुद से यूज कर सकते हैं, इक्वल टू क्लीन। क्लीन क्या आप क्लीन करना चाहते हो, हमको चाहते हैं इसको टाटा बाय बाय कर दे, तो चलो भाई क्लीन कर दो यहाँ पर। हाँ, क्लीन क्या लिया, कुछ लिया क्या यहाँ पर। एक्चुअली फंक्शन ही है इसके अंदर तो इसीलिए शायद नहीं लिया यहाँ पर। एक सेकेंड, हम यहाँ पर इसको क्लीन को यहाँ यूज करते हैं, इसको हम पहले फॉर्मूला हटा देते हैं और यहाँ करते हैं क्लीन। क्लीन और यहाँ पर हमारा शायद एक टेक्स्ट डाल देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ना क्लियर नहीं है, एक सेकेंड रुक जाओ थोड़ा सा। क्लीन में हम यहाँ पर और यहाँ पर एल ई इसमें ना एक हम देखेंगे इसको क्या काम करता है एग्जैक्ट, इसको कुछ और काम होगा, इसको हम देख के भी बताएंगे आपको कल। क्लीन कैर का काम क्या होता है, कैर का होता है कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर इक्वल टू CHAR कैर करेंगे और यहाँ पर डाल दिए 65। तो यहाँ पर 65 होता है कैपिटल ए का वैल्यू। तो कैर फंक्शन को ध्यान से देखेंगे आप, क्लियर को हम देखेंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन हम लोग बात कर रहे हैं वो है कैर फंक्शन। कैर फंक्शन क्या करता है, जिसको हम लोग चार बोलते हैं। आवाज आ रही है मेरी जी, Yes, sir. ऑडिबल। यस, कैर क्या काम Yes, sir. करता है कि कैर फंक्शन यूज करो, आप इसके इक्विवेलेंट इंटीजर पास करो। तो आप लोगों को पता है ASCII क्या होता है, अभी हम एक मिनट यहाँ पर 67 डाल दिए और उसके बाद समझाते हैं क्या है। सी आया, ये आपको ये पता है क्या, ASCII क्या है, ASCII व्हाट इज दिस, एनीवन। ASCII क्या है, So I don't know. it stands for American Standard Code for Information Interchange. It stands for American Standard Code for Information Interchange. Is it okay?
ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड व्हाट इज दिस? क्यों इतना लंबा नाम दिया गया? तो आप बता सकते हैं पाई का वैल्यू आपको पता है मैथ्स में? व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई? इट्स 3.14, है ना? दिस इज वैल्यू ऑफ पाई। मैथ्स में पढ़े हैं पाई? यस या नो? Yes, sir. तो क्या किया गया, पाई का वैल्यू फिक्स किया गया, अदर कैन यूज 22/7 और 3.14। द सेम वे कंप्यूटर में क्या होता है, बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड वाली मशीन लैंग्वेज दैट इज द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड दैट इज 0 और 1। इसके अलावा कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। तो किसी भी नंबर को यदि हम 10 डालते हैं या 15 डालते हैं तो कंप्यूटर को 15 नहीं मिलता है, उसका बाइनरी कोड कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो है वह 15 को कन्वर्ट किया जाता है। तो 15 का बात करें तो 15 विल बी आई थिंक 4 टाइम्स 1 1 1 1 1 1। यदि हम 2 इंटर करते हैं तो 2 का बाइनरी कोड होता है 10। 2 का बाइनरी कोड क्या होता है 10। 3 का बाइनरी कोड क्या होता है 11। मींस इफ यू आर प्रेसिंग 3, यदि हम यहाँ 3 डालते हैं, यहाँ पर तो 3 डालते हैं तो कंप्यूटर को ये 3 नहीं मिलता है। कंप्यूटर को मिलता है क्या, इस 3 के स्थान पर मिलता है वह है 1 1। क्या मिलता है 1 1। ये बाइनरी कोड हुआ, यानी बाइनरी कोड का मतलब 1 0 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर है कि हम लोग जो नंबर यूज करते हैं वो नंबर यूज करते हैं डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर जो कॉम्बिनेशन होता है वो 0 से लेकर 9 तक, जो भी हम लोग काउंटिंग में मैथ्स में जो भी यूज करते हैं उस नंबर सिस्टम को बोलते हैं डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं हम लोग? which नंबर? Decimal डेसिमल number. नंबर। यस। एंड व्हाई डेसिमल नंबर बोलते हैं? बिकॉज जो नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है। यानी जितने भी सारे नंबर जो बनते हैं, जितने भी डिजिट बनते हैं, दैट विल द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक। एंड व्हेन यू काउंट फ्रॉम 0 to 9, the total will be what? Just count it from 0 to 9. Tell me total will be? Just count from 0 to 9. Total length will be 10. 0 1 2 3 4 Yes. 5 6 7 8 9. When you count this one, so total length will be 10. इसलिए इसको डेसिमल बोला जाता है। तो सेम वे बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी मींस व्हाट 2। और बाइनरी में जो नंबर जो फॉर्म होता है वो 0 1 के फॉर्म में होता है। व्हेन यू काउंट दिस वन, तो दैट यू विल गेट द 2। नेक्स्ट नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल, जो आप आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टीच अबाउट दिस थिंग, जस्ट ओनली आई एम गोइंग टू टीच कि आस्की क्या है या आस्काई कोड क्या है, उसके बारे में बताते हैं। तो कोई भी नंबर को, किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, चाहे वह ऑक्टल हो, डेसिमल हो, हेक्साडेसिमल हो। इसका प्रोसीजर है जो कि हम क्लास आपको शायद 11th में चाहे आप आईपी लोगे या सीएस लोगे तो उसमें है, जिसमें बताया जाएगा आपको। तो किसी भी नंबर को चेंज किया जा सकता है बिकॉज देयर इज अ प्रोसीजर। जैसे हम लोग किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, मीटर में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ प्रोसीजर। बट यदि हम ए प्रेस करते हैं, बी प्रेस करते हैं, के प्रेस करते हैं, अमलेस प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज अमलेस, व्हाट इज के, व्हाट इज डी। नो। एंड देयर इज नो एनी सिस्टम टू कन्वर्ट दीज अल्फाबेट्स इनटू द इक्विवेलेंट न्यूमेरिक फॉर्म। तो यहाँ पर जो ASCII है, इसको हम लोग आस्काई बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वो क्या किया कि अल्फाबेट्स स्पेशल सिंबल्स का एक न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स किया, लाइक पाई। तो पाई का वैल्यू 3.14 जैसे फिक्स किया गया, तो सेम वे कैपिटल A 65 फिक्स किया गया, 66 67 68 69 70 इस तरह से फिक्स किया गया, जो बताता है कि इफ यू प्रेस कैपिटल A तो वैल्यू उसका न्यूमेरिक होगा 65। फिर इससे चलते जाएगा 66 67 68 69 लाइक दिस। और जब ये नंबर फिक्स कर दिया गया तो अब इस नंबर को बाइनरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो दिस इज द ASCII, जो कि एक वैल्यू को, अल्फाबेट्स का वैल्यू फिक्स किया गया। दिस इज ओके। अब वो वैल्यू क्या है, तो यू कैन सी फ्रॉम, किससे देख सकते हैं आप, कैर फंक्शन देख सकते हैं। तो 66 का वैल्यू फिक्स किया गया, यू कैन सी कैपिटल सी। अब इसी में चेंज करोगे कि सर थोड़ा बताइए तो 97 किसका फिक्स किया गया, 97 प्रेस करते हैं, किसका वैल्यू है वो बताओ, स्मॉल a का। सेम वे यदि आप नेक्स्ट पास करते हो 99 करते हो तो किसका आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं सी का, स्मॉल सी का। अब आप यदि कहोगे सर 94 डाल के देखिए तो क्या है, तो 94 जो है वह देखिए किसका वैल्यू, एक सिंबल का, एक्सपोनेंट सिंबल का है। इसी प्रकार कहोगे सर थोड़ा 120 पास करके देखिए तो किसका आता है, तो आप देखिए 120 पास करते हैं किसका आएगा। इस तरह से क्या किया गया, कैरेक्टर को फिक्स किया गया 120। देखिए एक्स का,
आप कहोगे सर 135 प्रेस करके देखिए, तो 135 इंटर कीजिए तो क्या आता है, तो देखिए 135 एक स्पेशल सिंबल्स दिखेगा यहाँ पर। क्या सिंबल्स है पता नहीं, सिंबल्स का नाम क्या है, बट दिस इज द सिंबल्स। तो दिस इज क्लियर। ASCII क्या होता है और कैर फंक्शन का काम क्या होता है। किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। आप किसी भी नंबर को पास करके देख सकते हो, वह आप इंटीजर नंबर पास करते हो, एक नंबर पास करते हो, 700 किसका है, तो वह भी कुछ ना कुछ सिंबल होगा। शायद 700 किसी का नहीं है, 700 किसी का नहीं है। यदि हम इसको चेंज कर दे और डाल दे यहाँ पर 200, तो किसी का है क्या। तो आप इससे आस्क का ही वैल्यू चेंज कर सकते। देखो ई के ऊपर डैश लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, बट ये सिंबल है। यदि हम इसी को थोड़ा सा 250 कर दे, तो किसी का सिंबल्स है, किसी का है इक्विवेलेंट, तो ये आपको रिटर्न करेगा। देखिए यू के ऊपर है, कुछ होगा, लैंग्वेज होगा कुछ इसमें यूज होता हो। तो दिस कैर इज क्लियर, कैर फंक्शन इज क्लियर, जिसको कभी Yes, sir. ऑक्सफोर्ड में देखोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है चार। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, चार। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या है टेक्स्ट फंक्शन में। फाइंड फिक्स करना, लेफ्ट लेन लोअर मीट प्रॉपर, रिप्लेस करना। यस, फाइंड रिप्लेस पता है आप सभी को, फाइंड रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस पता है ना। तो किसी लेटर को किसी के साथ रिप्लेस करना, यू कैन डू फ्रॉम हियर। सुराइक दिखाए, एग्जांपल दिखाए। Yes. Yes, sir. रिप्लेस, चलिए अब हम लोग रिप्लेस को देखते हैं। इक्वल टू रिप्लेस, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, इस अमलेश कुमार को हम चाहते हैं, अमलेश कुमार में थ्री से स्टार्ट कर रहे हैं, थ्री वाला लेटर जो है को हम चेंज कर दें, के से चेंज कर दें। क्या बोल रहा है, न्यू टेक्स्ट के साथ बोल रहा है। न्यू टेक्स्ट तो ठीक है जी, ओल्ड टेक्स्ट हमारा था K2। अच्छा, ओल्ड टेक्स्ट मतलब हमें यहाँ पर जिसको रिप्लेस करना उसका कैरेक्टर देना है, ठीक है। तो हम मान के चलो कि हम जो है सेकंड पोजीशन क्या था, M था, तो M को हम क्या चीज रिप्लेस करना चाहते हैं, K से रिप्लेस करना चाहते हैं। यस, अब क्या दिक्कत है, थर्ड पोजीशन पर M है, थर्ड पोजीशन पर M था क्या, नहीं सेकंड पोजीशन पर है, तो सेकंड पोजीशन पर डाल दो यहाँ सेकंड में, और स्टार्ट नाम और के से। देखिए अभी भी कुछ शायद मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट देखिए, हम लोग सॉर्ट आउट करें। Sir, न्यू I think it's टेक्स्ट small m. स्मॉल m डाल दे, चलो देख लेते हैं, स्मॉल m डालते हैं जी, स्मॉल m और स्मॉल m। अब देखिए न्यू टेक्स्ट नंबर, अच्छा स्टार्ट तक ऑल टेक्स्ट, स्टार्ट नाम, नम कैरेक्टर्स, नम कैर्स, नम कैर्स यहाँ बोल, एक पैरामीटर छूट रहा हमारा, तो नम कैर्स का मतलब जो है कहाँ से कहाँ जाना है शायद, तो हम यहाँ पर डाल दिए 5। उसके बाद देखिए, अब देखिए क्या है, क्योंकि एक आर्गुमेंट छूट रहा है यहाँ पर, देखिए रिप्लेस कर दिया MK कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा था 2 5 में लेकर, क्योंकि M ही को सर्च करना था, 2 से लेकर 5 तक कंडीशन देखोगे आप, तो देखो यहाँ पर हमारा 2 अमलेस है ना, और 1, और हमको चाहिए 2 से 5 ही तक चाहिए, तो जो भी नंबर था उसको रिप्लेस कर दिया हमारा K के साथ। तो इसमें और जितना काम करोगे उतना और क्लियर होगा। इस तरह से तो हमें लगता है सर्च वर्च सब हो गया, जितना काम का है उसमें सारा लगभग हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं, अच्छा एक और यहाँ कोड फंक्शन है, कोड फंक्शन हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं, कोड फंक्शन काम किया है, जस्ट 1 सेकेंड। कोड हमें लगता है कि इसका आस्की वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन बात कर रहे हैं, कोड क्या है, जो हमें लग रहा है कि कोड CODE कोड, और कोड के अंदर शायद हमें देना पड़ेगा कैपिटल A का वैल्यू क्या है, ये जस्ट अपोजिट टू, हमें लगता है कि जस्ट अपोजिट टू द कैर फंक्शन। कोड इज क्लियर,
Yes, sir. कोड समझ में आ गया? तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड कैर फंक्शन, तो व्हाट विल आंसर फ्रॉम योर साइड? कोड फंक्शन क्या करता है कि एज अ पैरामीटर हम लोग अल्फाबेट पास करते हैं एंड इसका इक्विवेलेंट इंटीजर वैल्यू पास करता है, रिटर्न करता है। और कैर फंक्शन में क्या करता है? जस्ट अपोजिट, हम लोग क्या पास करते हैं? कैरेक्टर पास करते हैं और उसके इक्विवेलेंट क्या पास करता है? रिटर्न देता है, इंटीजर रिटर्न करता है। दिस कोड इज ओके? सीखा डिंपल? Yes, sir. कितने बच्चे बचे हैं जी? देखिए थोड़ा एक बार, थोड़ा 12 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा नहीं लग रहा है क्लासेस, इसलिए बच्चे लोग ना 67 67 69 में से केवल 12 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। चलो ठीक है यार, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, और तो कुछ नहीं है। डॉलर में चेंज करना, एक्सट्रैक्ट करना, निकालना कहीं से कहीं बीच में से निकालना, फाइंड रिप्लेस। चलो यहाँ पर अब आते हैं हम लोग थोड़ा नया, डेट एंड टाइम फंक्शंस। मैथ्स फंक्शन भी यूज कर सकते हैं आप, मैथ्स फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। मैथ्स में हम लोग बात कर चुके हैं, साइन साइन जो भी है, कॉस थीटा, इवन और जो भी है आप कर सकते हैं। फ्लो डिवीजन भी है, ये सारा बहुत सारा फंक्शन। एक्सेल ने बताया, जैसे कि कल भी बात की थी कि एक्सेल जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, और इसकी जानकारी आप ले लेते हो तो मतलब बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग डेट एंड टाइम फंक्शन का बात करते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन भी देखिए क्या है, डेट निकालना, डेट वैल्यू, डेट थीसिसी, ई डेट, आवर, मिनट, मंथ, नाउ। ये सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन काम क्या होता है? इक्वल टू नाउ। नाउ जो है वह करंट सिस्टम का डेट एंड टाइम रिटर्न करेगा आपका। अभी मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे बज रहा है 11:14 हो रहा है। कितना हो रहा है? 11:14 हो रहा है ना। और Yes, जो sir. डेट है वह क्या है? 30 दिसंबर 2021। देखिए ये रिटर्न करेगा आपको, दिख रहा है आपको? नाउ फंक्शन के अनुसार रिटर्न कर रहा है। 11/14 रिटर्न किया, आपको दिख रहा है? नाउ फंक्शन Yes. क्या करता है? सिस्टम का करेंट डेट एंड टाइम रिटर्न करता है। यदि इसका हम टाइम चेंज कर दे, हम इसका टाइम चेंज कर दे, डेट चेंज कर दे, तो वह उसी के अनुसार क्या करेगा? डेट और टाइम दिखाएगा नाउ फंक्शन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नाउ के बाद डे निकालना। चलिए डे निकालते हैं हम लोग। यहाँ डे आप लोग कभी देखिए ना, बोलते हैं कि इस तारीख को इसमें क्या डेट है, तो चलिए हम लोग अभी बात करते हैं DAY, डे। डे हम लोग करते हैं, और डे के अंदर हम लोग यूज करते हैं डे। क्या आ गया? आज का डे डाले तो 30th डे आ गया। आज कौन सा डे है हमारा? 30वां दिन है, 30वां दिन है हमारा। फिर से देखो, हम फिर से बात करने जा रहे हैं, डे को यूज कैसे करते हैं? DAY, डे। इसके अंदर हम पास करने चाह रहे हैं एक डेट। बता दो, आप ही डेट बता दो। यहाँ पर आपका DDMMYY है, तो हम डालते हैं, मान के चलो 13/11/2021। अब इस दिन में हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या डे है, तो डे यहाँ ऑलरेडी कितना आना चाहिए? 13। क्या जी कुछ गलत हो गया? ये यहाँ पर थोड़ा लगता है कि मिस्टेक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर इक्वल टू DAY, डे, और यहाँ पर डाल देते हैं। लिया क्यों नहीं ये? सीरियल नंबर होता क्या है देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक करने पे खुल जाएगा ये। सीरियल नंबर यदि हम यहाँ पर नाउ यूज कर देते हैं, नाउ यूज करते हैं, तो नाउ का मतलब ये आज के अनुसार ये आपको रिटर्न करेगा। इट्स वर्किंग, 30th हो रहा है। यदि यहाँ पर हम चेंज करके यहाँ डे में तो और काम करना चाहिए, या फॉर्मेट हम लोग गलत डाल रहे हैं क्या? चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ऐसा करते हैं, MMDDYY करते हैं, 1999 डैश MM डाल देते हैं 02, और AB डाल देते हैं 02। अब देखिए कि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या हो सकता है कि हमें डबल कोड में लेना पड़े। यस, यहाँ पर देखिए या रिटर्न किया है। प्रॉब्लम क्या आया, क्या सोल्यूशन है वो समझ में आया आपको? देखिए यहाँ जो फॉर्मेट है ना, सिस्टम का जो फॉर्मेट होता है, डेट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है YYYY MM एंड DD।
तो यहाँ पर जब डालेंगे तो आपको फॉर्मेट डालना पड़ेगा उसके अनुसार। तो कौन सा दिन था आपका, वह आपका रिटर्न कर रहा है। डे में आपका 999, तो आपको जो रिटर्न कर रहा है वह 17वां दिन था आपका। सेम वे यदि नेक्स्ट फंक्शन का बात करें हम लोग यहाँ पर, तो डेट हो गया, डेट वैल्यू हो गया। डेट यदि निकालना चाहते हैं, आज का डेट निकालना चाहते हैं, तो आप सिंपल से यूज कीजिए इक्वल टू DATE, डेट। ये केवल डेट देगा। क्या देगा? ये आपको डेट निकाल के देगा। जैसे अभी यहाँ पर हम डाल देते हैं नाउ कर देते हैं, तो आज का जो डेट है वह रिटर्न करेगा। क्या हुआ? नाउ फंक्शन है तो हम लोग ब्रैकेट मिस किए हैं यहाँ पर, तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। DAT, डेट। अच्छा, हमको लगता है यहाँ पर पहले ईयर डाल दो, 2020 डाल दिए, एंड मंथ डाल दिए हम यहाँ पर 10 डाल दिए, और डे डाल दिए 5। तो डेट आपको उस फॉर्मेट में आ गया, यानी डेट फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं, डेट फंक्शन। सो डेट फंक्शन इज क्लियर, नाउ फंक्शन इज क्लियर, डेट इज क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं हम लोग ई डेट, ई मंथ, आवर निकालना चाहते हैं, मिनट निकालना चाहते हैं, मंथ देखना चाहते हैं, सेकंड देखना चाहते हैं, टाइम देखना चाहते हैं। सेम वे आप टाइम निकालना चाहते हैं तो टाइम भी आप यूज कर सकते हैं, इक्वल टू टाइम। और यहाँ पर आप घंटा मिनट डाल सकते हैं। यहाँ पर घंटा मान कर चलो कि 12वां घंटा, 10 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। तो ये आपको इसका टाइम फॉर्मेट में दिखा देगा। तो टाइम फॉर्मेट क्या होगा आपका? 12:10 PM होगा, जो भी हम अभी दिखाएं आपको। तो इस तरह से फॉर्मेट में चेंज करने के लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं डे 360, 2 डेज के बीच में रिटर्न करेगा। मंथ है, इको मंथ है, ईओ मंथ है, आवर है, आवर में हो गया मंथ, नेटवर्क डेज, नाउ, सेकेंड, टाइम, टुडे, आज का डेट दिखाएगा। टुडे जो क्या करता है, रिटर्न्स द करेंट डेट फॉर्मेटेड एज डेट। वीकडे, वीकडे कौन सा वीकडे होगा? वीकडे में भी हम लोग करके देखें, यहाँ पर क्या था, वीकडे था ना। वीकडे के अंदर हम नाउ को पास कर देते हैं। आज का जो है वीकडे जो है 5वां दिन है जी। आज संडे से काउंट करो तो 5वां दिन है। Yes, sir. तो वीकडे आपको रिटर्न कर दिया, 5वां डे रिटर्न कर दिया, क्योंकि संडे से काउंट होता है। वीकडे, वीक नाम, वीक नाम, वीक का नंबर बताएगा कौन सा वीक का नंबर। चलो हम लोग वीक नाम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग वीक नाम यूज करते हैं। कौन सा वीक का नंबर है वो रिटर्न करेगा। नहीं दिया यहाँ पर। अच्छा, वीक खाली हो गया था, वीक नाम डालना, NUM, वीक नाम, और उसके बाद डालते हैं। देखो आप कैलकुलेट करोगे ना, तो अभी जो वीक चल रहा है वो कौन सा वीक चल रहा है? 53 वीक चल रहा है। एक साल में कितने वीक होते हैं? 54 होते हैं ना, 53. 53 होते हैं। तो अभी लास्ट वीक चल रहा है, 53 रन किया। Yes, sir. तो ये सारे हैं, यूज करते रहना है। ईयर निकालना, ईयर निकाल सकते हैं। उसके बाद लॉजिक तो बता दिए हम, फाइनेंशियल का भी बता दिए हम लोग, टेक्स्ट भी बहुत सारा डिस्कस कर दिए, डेट एंड टाइम हो गया, मैथ्स का फंक्शंस हम लोग अधिकांश पढ़ चुके हैं। सम उम निकालना तो है, डिग्री निकालना, इवन ऑड निकालना, इस ज़्यादा आपका यूज का नहीं है। लॉग वैल्यू निकालना, पाई है, पावर निकालना, कुछ कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पर जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग राउंड का बात कर चुके हैं, पावर है, साइन निकालना, स्क्वायर्टी निकालना, कुछ कुछ फंक्शंस हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। स्क्वायर्टी निकालना जानते हो आप लोग?
कुछ फंक्शन डिस्कस कर देते हैं हम लोग। पावर निकालना है, पावर मतलब POWER, पावर निकालेंगे। किसका पावर निकाला? 10 टू पावर 2। बताइए तो 10 टू पावर वैल्यू 2 का वैल्यू क्या होगा? 20. हाँ, 10 टू पावर So 2 का वैल्यू 100. क्या होगा? 100. यस, 100। ये पावर का काम है, यहाँ पर पावर फंक्शन का काम है। सेम वे फिर आप यहाँ पर मैथ फंक्शन में आप देखेंगे, मैथ फंक्शन सबसे ज्यादा है यहाँ पर। उसके बाद मॉड निकालना चाहते हैं, पावर हो गया। प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, जैसे सम होता है उस तरह से प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो हम प्रोडक्ट कर देते हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट कर दिए तो प्रोडक्ट क्या करेगा हमारा, बताइए तो क्या देगा प्रोडक्ट में? 20, 10 इंटू 2 कर देगा, 10 इंटू 2 कर देगा। द सेम वे हमारे पास फंक्शन है SQRT। क्या फंक्शन है? SQRT, SQRT स्क्वायर, SQRT। अब जब करेंगे तो स्क्वायरटी निकालेगा, लेकिन यहाँ पर एक ही पैरामीटर देना होगा हमको। तो हम यहाँ पर दे देते हैं 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताइए तो? 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 100 का स्क्वायर रूट, ऑल आर हियर। So 10,000. स्क्वायर रूट मतलब आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, Sir, तो वैल्यू विल बी 10। 10. वैल्यू विल बी 10। 10. यस। तो आप सभी जो है ना कुछ वर्क हम देंगे आज आपको। अब यहाँ से वापस आते हैं हम और क्वेरी सेशन में कुछ करते हैं, बिकॉज 11:24 बताने के लिए बहुत कुछ बताए हैं। और देखिए इसमें ना आज भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है, बीच में चला गया तो एक साथ वीडियो नहीं है, तो देखते हैं यदि एक साथ आया होगा तो आई विल अपलोड टुडे ऑल्सो। आज का भी सेशन अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको जब स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आज डे 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। इसके आगे नहीं बताएंगे, फार्मूला वगैरह जितना भी है वो फंक्शंस वगैरह आप सभी को जान चुके हैं आप अच्छे ढंग से। प्रॉब्लम होगा तो आप देखते रहेंगे। And I'm not happy because out of 69 only 12 are here in the morning. I think 19 or 20 students have joined. तो कुछ बच्चे जो हैं, जो रेगुलर बच्चे हैं वो कर रहे हैं, एंड आई थिंक जो रेगुलर जुड़े हुए हैं तो दे आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग। कल जो हमारा सेशन रहेगा वह है चार्ट बनाना, विजुलाइजेशन करना, डेटा विजुलाइजेशन करना। एक्सेल में बहुत कुछ है, ठीक है। तो अभी जैसे पाइवट टेबल वगैरह भी बहुत कुछ था, तो कल भी बात किए थे, तो शायद नहीं बता पाए। हो सकता है कि वो वर्मा सर बता रहे होंगे। सब टोटल है, सिनेरियो है, गोल सीख है। तो एडवांस क्लास जो चल रहा है और 10 से लेकर 12 तक चल रहा है, तो वहाँ बताया जा रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको बीच में यदि आप सीखना चाहते हो तो यू फील फ्री, आप फ्री महसूस करो और हमें मैसेज कर दो, सर आई वांट टू नो अबाउट दिस थिंग, कैन यू हेल्प मी, तो आई विल बी रेडी। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप केवल अपना नाम और मैसेज अपना डाल देना तो आई विल हेल्प यू। रिलेटेड टू कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। एंड मेरा चैनल में तो आप जान ही रहे हैं, वहाँ भी कमेंट करके डाल सकते हो, सर आई एम जस्ट फेसिंग दिस प्रॉब्लम, सो काइंडली जस्ट अपलोड द वीडियो रिलेटेड टू दिस और दैट, वॉट एवर। क्योंकि कमेंट भी एक हमारा जो है वो एक वे होता है यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि हो सकता है कि शायद नहीं, तो आप वहाँ भी डाल सकते हो। दूसरी चीज़ है टीच मीट में भी हमारा जो एक चल रहा है, जिसमें आप लोग शायद कुछ बच्चे हैं। कैन यू टेल मी तो व्हाट इज द नेम ऑफ टीच मीट चैनल? हमारा टीच मीट चैनल का नाम क्या है, बता सकते हैं आप लोग? नॉट टीच मीट, सॉरी, टेलीग्राम। टेलीग्राम में एक चैनल है, उसका नाम पता है आप सभी को? डू यू नो? No, sir. रानी, आप यदि टेलीग्राम में हैं तो कुछ भी जो नया कुछ वीडियो अपडेट होता है, जैसे वो हो सकता है कि मेरा स्टेटस में होता है बट आप लोग नहीं, बहुत सारा वीडियो ऐसा होता है जो कि हम नहीं डाल पाते हैं चैनल में, मतलब आपके ग्रुप में। तो उस केस में आप जो है वो टेलीग्राम से भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम में हमारा जो चैनल है वो है टेक अपडेट। क्या नाम है? टेक अपडेट। आप सर्च करके देखेंगे तो टेक अपडेट है, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। नाउ दिस इज अ क्वेरी सेशन। कहीं भी कुछ क्वेरी है यू कैन आस्क, यू फील फ्री। खासकर 2 दिन में बहुत कुछ डिस्कस किए हैं, बाकी उधर 2 दिन हमारा बेसिक चल रहा था, 2 दिन हमारा बेसिक चल रहा था। और ये 2 दिन बहुत अच्छे ढंग से, कल और आज का क्लास बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। किन्हीं को भी क्वेरी है, डिम्पल,
शिखा, प्रिया, अंजलि, कुछ भी क्वेरी है, यू कैन आस्क टू मी. No any query? तो कैन आई एंड दिस क्लास? Yes, sir. तो होमवर्क क्या है, सारे फंक्शंस को जो है, जितने भी सारे फंक्शंस आप पढ़े हैं, वॉट एवर फंक्शंस आई हैव डिस्कस, आई वांट कि सारे फंक्शंस का यूज करके आप हमें स्प्रेडशीट में भेजोगे. आप नो नीड टू राइट इन द कॉपी, बट आप उसका एक सीट, जैसे भी हम बताएं ना, सीट बना के सारा कुछ, तो उस तरह का सारे फंक्शंस जितना भी स्टडी किए हैं वह बन जाना चाहिए. बन Yes, जाएगा? sir. Yes, रानी sir. का रिस्पॉन्स आया, तनिषा का रिस्पॉन्स आया, सानिया Yes, महवीस बोलती कम है लड़की, बट ये काम करती है, तो क्लास में भी कम बोलती है शायद. So okay, so now it's 11:28. So just I'm hoping कि विंटर कैंप में जो भी कुछ डिस्कस हो रहा है तो आप लोग उसका इम्प्लीमेंट करोगे. एंड इन स्कूल whenever I feel that कि ये सब चीज काम करना है, तो कैन आई इंगेज टू यू पीपल, असाइन कर सकते हैं कि now yes you do Yes, this sir. one, you do this one. sir. Okay, Yes, sir. very good, very good. So now I'm going to end this class. Thank you very much.